ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ معروف کشمیری فیشن ڈیزائنر بنی کرونا کی جنگ کا حصہ۔ لاک ڈاؤن میں سری نگر میں راشن کی ہوم ڈیلیوری۔ فوج کی بیداری مہم اور ضرورت مندوں میں کھانے کی اشیاء تقسیم۔ پنچ میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی انتظامات مکمل۔ راجوری میں حکومتی ہدایات پر راشن کی تقسیم کاری۔ حکومتی سطح پر جہاں کرونا وائرس کے حوالے سے تحفظاتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں انفرادی سطح پر خواتین بھی اس عالمی وبا کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہی ہیں۔ کشمیر کی معروف فیشن ڈیزائنر مفتی سعدیہ ماسک کی کمی کو دور کرنے کے لیے ماسک تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ کشمیر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور اب تک سامنے آنے والے 5 درجن مصدقہ کیسز میں سے 2 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ پوری وادی میں فیس ماسک سمیت دیگر ذاتی حفاظتی سامان کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں کئی نوجوان اور تنظیمیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے میڈیکل ایمرجنسی کی اس گھڑی میں لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کشمیر کی معروف فیشن ڈیزائنر مفتی سعدیہ نے کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں عملی طور مظاہرہ کرتے ہوئے ماسکس کی کمی کو دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر ماسکس تیار کرنا شروع کر دیا۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے جذبے سے سرشار سعدیہ مفتی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی پرسنل پروٹیکٹیو گیئر بھی تیار کر رہی ہے۔ کیا ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے میں اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے مارکیٹ میں ماسک خریدنے گئی تھی، تو میں نے دیکھا کافی شارٹیج ہے اور کافی ہائی ریٹ پہ مل رہے ہیں اگر ماسک مل بھی رہے ہیں، اور کافی دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں، وائرس پھیل رہا ہے، کیونکہ ایک بہت میجر سیفٹی ہے ماسک پہننا جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں، کسی بھی دوسرے انسان سے کمیونیکیٹ کریں۔ اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے میں نے اپنے ورک شاپ پہ پہلے ایک سیمپل بنایا ماسک کا اور دیکھا کہ وہ ہے صحیح بن رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے 3 لیئرڈ ماسک بنایا ہے کاٹن کا، جو کہ واشیبل ہے، آپ اس کو پہن کر دوبارہ دھو کر آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اور کسی حد تک، کہیں نہ کہیں حد تک ایئر کو سٹاپ کرتا ہے اندر آنے کے لیے۔ اور اس چیز کو انیشیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کیوں نہیں تھوڑی سی ہیلپ کی جائے سوسائٹی کے لیے۔ مفتی سعدیہ، جو سری نگر میں ہینگرز کے نام سے خواتین کے ملبوسات کا ایک مشہور سٹور چلاتی ہیں، کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو ضرورت کے وقت معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت کرتیاں ڈیزائن کرنے کا نہیں ہے، بلکہ کورونا وائرس سے جنگ لڑنے کے لیے مؤثر اور تحفظاتی آلات کو تیار کرنا ہے۔ مفتی سعدیہ نے بدلتا منظر کو بتایا کہ وہ اس صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موجودہ میڈیکل ایمرجنسی میں بغیر کسی منافع کے ماسکس اور پروٹیکٹیو گیئر تیار کر رہی ہے، جس سے انہیں قلبی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ میں جو یہ ماسک ہے وہ میں ریٹ ٹو ریٹ پرووائڈ کر رہی ہوں، جو بھی مجھ سے خرید رہے ہیں میں اس میں سے کوئی پروفٹ نہیں لے رہی ہوں، تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی ایشو ہو رہا ہے اس کی ریٹ جو ہے نا ویسی بنانے کی، لوگ خرید پائیں اس چیز۔ ابھی میں تو آرام سے 50,000 کے اباؤ دوں گی ابھی، لیکن جو پرابلم مجھے ہو رہی ہے وہ ہے شارٹیج ہو رہی ہے فیبرک کی، مٹیریل کی، جو مٹیریل اس میں چاہیے، اور دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ کافی ایکسپینسو مل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اگر میری یہ ہوگی ایک اپیل ہوگی گورنمنٹ سے، اگر وہ مجھے کچھ فیبرک پرووائڈ کر پائے، یا جن لوگوں کے پاس ہیں بھی وہ مجھے افورڈیبل پرائزز پہ دے پائے تاکہ میں خرید پاؤں اور زیادہ سے زیادہ ماسک بنا۔ ابھی میرے کو بہت سارے کالس آ رہے ہیں، میں نے کل ہی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تھا تھرو ٹویٹر، تو میرے کو کافی زیادہ NGOs وغیرہ لوکلی کچھ جرنلسٹ لوگوں نے بھی مجھ سے اپروچ کیا ہے مجھے ماسک وغیرہ کے لیے۔
सादिया मुफ्ती कहती हैं कि मैं खुद को काफी खुश किस्मत समझती हूँ कि मेरे वसाइल मौजूद थे, जिनको बरूए कार लाकर हम ये मास्क तैयार कर रहे हैं। दर्जनों खवातीन रजाकार तौर पर मास्क तैयार करने के लिए आगे आ रही हैं, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू की गई जंग जीती जा सके। उन्होंने अपने तैयार करदा मास्क के नमूनों को पहले मंजूरी के लिए तिब्बी माहिरीन को बेच दिया और मंजूरी के बाद ही इस मंसूबे पर काम कर रही हैं। मेरे पास कुछ लड़कियां भी यहाँ पे काम करती हैं जो कि घर लेके काम करती हैं, उनको भी मैंने फ्री में मास्क दिए हैं। और मेरी यही एक जो मेरा मोटिव है इसका यही है कि लोगों को मेरी वजह से कुछ हेल्प हो पाए। इसके आगे जो है मैं PPE किट्स जो है वो बना रही हूँ, इंशाल्लाह आज दिन में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप कि वो भी लोगों को किसी ना किसी हद तक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को हेल्प होगी उसकी वजह से। तिब्बी इमरजेंसी सूरत हाल में हर एक को अपना तामीरी रोल अदा करना चाहिए और मुत्तहिद होकर ही आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फतह हासिल की जा सकती है। कश्मीर में कोरोना के कई पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ऐसे तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है और समाज के लिए कुछ करने का वक्त बार बार नहीं आता। आइए हम सब मिलकर कोरोना को शिकस्त दें। महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तक़सीमकारी और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से श्रीनगर में राशन की तक़सीमकारी का अमल शुरू किया गया। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के दौरान घर घर राशन पहुँचाने का ऐलान किया गया था ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। महकमा उमूर सार्फिन और अवामी तक़सीमकारी और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से श्रीनगर में राशन की तक़सीमकारी का अमल शुरू किया गया है। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के दौरान घर घर राशन पहुंचाने के ऐलान के बाद महकमे ने श्रीनगर के कई इलाकों में सार्फिन तक राशन पहुंचाया। गवर्नमेंट ने अच्छे कदम उठाए कि आजकल जो होम डिलीवरी सिस्टम हुआ स्टार्ट, अच्छा पहल हुआ है, उनके लोगों के लिए फायदेमंद हुआ है साबित, क्योंकि लोग घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे और क्यों में रहेंगे, दूर दूर डिस्टेंस रखेंगे, इस तरह बीमारी का फैलने का खतरा भी नहीं है। तो अच्छी बात है कि आजकल आजकल जो लॉकडाउन हुआ इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई, तो इस वजह जो आजकल जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए ये बहुत अच्छा कदम है। इब्तदाई मरहले पर श्रीनगर के 6 ज़ोनों में घर घर राशन पहुंचाया गया, जिसमें दरगाह, ज़ुकूरा और हवल ज़ोनों में घर घर राशन तकसीम किया गया, जबकि जनूबी जोन के रामबाग, महजूर नगर और राजबाग जोनों में भी ये अमल जारी रहा। ये हमें बहुत अच्छा स्टेप लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमें घरों में बैठना है, तो हमारे पास राशन नहीं है, तो हमको राशन भी बेचना चाहिए। जो एसेंशियल सर्विस जो भी एसेंशियल सर्विस है वो घर में पहुंचना चाहिए। महकमा उमूर सार्फिन और अवामी तक़सीमकारी के असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्थ और असिस्टेंट डायरेक्टर साउथ की निगरानी में सार्फिन तक राशन पहुंचाया गया, जबकि महकमे के डायरेक्टर बशीर अहमद खान खुद इस काम की निगरानी कर रहे थे। हर जगह पर हमारा महकमा इस वक्त काम कर रहा है जंगी बुनियादों पर हमारा महकमा इस वक्त काम कर रहा है। हर एक मुलाजिम तैयार है राशन देने के लिए। दिन रात हमने क्वारंटाइन सेंटर उसको राशन फराहम किया। जब भी तहसीलदार बुलाता है हम इसी वक्त पहुंच जाते हैं उनको राशन मुहैया करने के लिए। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लोगों को अपने घरों तक महदूद रखने के लिए जहां लॉकडाउन जारी है, वहीं जिला इंतजामिया श्रीनगर ने अवाम को रोजमर्रा की जरूरियात बिलखुसूस अशियाए खुर्दनी घर घर पहुंचाने के लिए तकसीमकारी का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर लोगों में होम डिलीवरी निजाम के तहत चावल को तकसीम किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां इंतजामी सतह पर हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं फौज भी न सिर्फ ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीमकारी कर रही है, बल्कि लोगों में बेदारी भी फैला रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हुकूमत हिंद की जानिब से जहां सिविल इंतजामिया लॉकडाउन के दौरान लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुंचा रही है,
वहीं फौज भी इस अमल में पेश है। फौज की जानिब से मकामी और गैर मकामी मजदूर तबके में जरूरी चीजें तकसीम की गई। यहाँ तो सब बाजार बंद है, जो बिहारी वो बिल्कुल परेशानी में है, क्योंकि जो यहाँ साथी हमारे गाँव पे गागरपुरा का, उन्होंने यहाँ वो आज सवेरे वो चावल मसाला बाकी जो खन खुदी की चीज़ उन्होंने उसको दिया है, तो राहत का सांस लिया है, नहीं तो बहुत परेशानी हो गई। तो वो बोलते हैं, मैं उस बिहारी के साथ बात की, उन्होंने बोलते हम बहुत खुश है आर्मी की तरफ से। फौज की जानिब से कोरोना वायरस के रोकथाम से मुतालिक लोगों को जानकारी भी दी गई। लोगों को बताया गया कि कोरोना वायरस के हवाले से फिलहाल कोई दवा नहीं है, ताहम एहतियात से इस वबा को दूर रखा जा सकता है, जिसके लिए सफाई लाजमी है। आज का ये यहाँ पे कोई दुकान वगैरह नहीं खुल रही थी, इस वजह से वो आर्मी वालों ने थोड़ा खाने पीने को दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से हम घर परिवार चल रहा है। फौज ने आम लोगों को बताया कि एहतियात बरतने के अलावा कोरोना वायरस से बचाव का कोई कारगर तरीका अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए लोगों को बेदार करना जरूरी है। इधर खाने पीने का दिक्कत था लॉकडाउन के लिए, इसीलिए आर्मी वाले ने मदद कर रहे हैं। तो कितना मदद मिलेगा इस चीज़ से आपको? मिल जाएगा जो 4-5 दिन। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था आपको? नहीं, दुकान सब बंद था, इसी वजह से। एक बेदारी मुहिम के तहत फौज की जानिब से खुसूसी बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। कोरोना वायरस से मुतालिक अहम जानकारियां और बचाव के तरीकों से बेदार करने के लिए इस प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। फौज ने कोरोना वायरस के मौजूदा खतरे के पेश नजर लोगों तक अहम जानकारियां पहुंचाई। कोविड-19 से पैदाशुदा हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पुंछ में शोबे सेहत मुकम्मल तौर तैयार है और इस ज़िम्न में मरकजी वज़रात दाखिला और आलमी इदारा सेहत की तरफ से जारी की गई हिदायत के मुताबिक तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। कोविड-19 से पैदाशुदा हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पुंछ में शोबा सेहत मुकम्मल तौर तैयार है और इस ज़िम्न में मरकजी वज़ारत दाखिला और आलमी इदारे सेहत की तरफ से जारी की गई हिदायत के मुताबिक तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। हमने एक क्वारंटीन वार्ड बनाया हुआ है जो 50 बेड्स का है, तो इतनी स्पेस जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी एक हमारा नया ओपीडी बन रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने 40 बेड्स वहाँ पे लगाए हैं और 10 बेड्स जो हैं वो दूसरी जगह पे लगाए हैं, लेकिन टोटल 50 बेड्स का जो हम लोगों ने क्वारंटीन वार्ड यहाँ पे रखा हुआ है। शोबा सेहत की जानिब से पुंछ के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं, जबकि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को मुतहरिक कर दिया गया है। आलमी वबा ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया है और इससे बाहर आने के लिए हर सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टोटल 474 ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट इलाका जात से पिछले कुछ दिनों में फॉरेन से आए, और इसमें से आज की डेट में जो है 238 लोग ऐसे हैं जो कि 14 दिनों का अपना पीरियड पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सर्विलेंस में, और 91 लोग ऐसे हैं जो कि टोटल 28 डेज का भी पीरियड पूरा कर चुके हैं। हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के तहत पुंछ में कोविड-19 के खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने एक तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं 24/7 चल रही हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक अलग से हमने एक फ्लू ओपीडी जो है वो बनाया हुआ है। वहाँ पे सिर्फ जो खांसी जुकाम बुखार वगैरह के जो पेशेंट्स होंगे, आपको पता है मौसम के चेंज होने की वजह से भी ये वाला जो सिस्टम है वो चलता रहता है, तो वो हमने एक फ्लू ओपीडी अलग से बनाई है। उसमें अल्टरनेट डेज पर हमारे जितने भी फिजिशियंस हैं, जैसे एक आज बैठेगा, एक कल, एक परसों, ऐसे करके वो हमने अलग से रखी है वहाँ पे। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिया है। इसने दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर दिया, जबकि हजारों की तादाद में हलाकतें हुई।
कोरोना वायरस को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन और जंग अजीम दोम के बाद सदी का बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर शुरू किए गए लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को खाने पीने के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इस ज़िम्न में एक मंसूबा तरतीब दिया गया है, जिसके तहत पहाड़ी जिला राजौरी में लोगों में राशन तकसीम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में 21 रोजा लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। ये फैसला मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। ताहम लॉकडाउन में खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले अफराद तक राशन पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत भी दी गई है। राजौरी में इसी हिदायत के तहत राशन मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जा रहा है। हम डोर टू डोर लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। एसेंशियल सर्विस जो है वो महकमा की तरफ से हमें पास इशू किए गए हैं। गाड़ियों पे एसेंशियल सर्विस जो आरटीसी गाड़ियां वो लगी हुई हैं, डोर टू डोर लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, मिड डे मील पहुंचाया जा रहा है, गैस जो है वो पहुंचाई जा रही है, और जो ज़रूरियात की चीज़ें लोगों को इंशाल्लाह सफ़र नहीं होने दे रहे हैं। महकमा का बहुत बड़ा कॉपरेशन है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर शुरू किए गए लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को खाने पीने के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इस ज़िम्न में एक मंसूबा तरतीब दिया गया है, जिसके तहत पहाड़ी जिला राजौरी में लोगों में राशन की तकसीमकारी पर अमल दरामद किया जा रहा है। हम जो मिड डे मील स्कीम्स हैं उसको भी हम दूर दराज इलाकों में गाड़ियों पर पहुँचा रहे हैं। राशन जो BPL, AY, APL ये भी हम दूर दराज इलाकों में अच्छे ढंग से अपनी तरफ से पूरी कोशिश है पहुँचा रहे हैं। पहुँच रहा है, राशन लोगों को मिल रहा है। तो यही कहना है कि इस बीमारी में हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए, घरों से नहीं निकलना चाहिए। हुकूमत ने सभी रियासतों को हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को खाने पीने के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन और दीगर जरूरी चीजों की सप्लाई को बगैर खलल जारी रखा जाए। राजौरी में भी इन्हीं हिदायत के तहत खाने पीने की चीजें तकसीम की जा रही हैं। किसी भी चीज़ की हमने किल्लत नहीं होने दी है, उसमें चाहे गैस सिलेंडर्स हैं, हम हर जगह वो भी पहुंचवा रहे हैं। डीसी साहब ने एसेंशियल सर्विस वालों के पासेस इशू कर दिए हुए हैं। हमारा डिपार्टमेंट पूरे ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है। हम होम डिलीवरी पे उस चीज़ पे आ रहे हैं कि हम होम डिलीवरी करेंगे। उसके बाद एसेंशियल सर्विस में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमने पूरा वाच रखा है। जहाँ से भी हमें फ़ोन आ रहा है हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया हुआ, कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। कहीं से भी फ़ोन आ रहा है हम उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसकी तुरंत उसी टाइम पे उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं। हुकूमत ने राशन की कीमतों के हवाले से भी बड़ा ऐलान किया है। इन इक़दामात का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस गरीब लोगों को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।